in my previous lecture, I told you about the role of temperature, okay, in change of state. Okay, we did yesterday that how when the one state changes to another, then what happens when we heat a substance or what happens when we cool a substance. Okay? जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं तो क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज है तो हीटिंग पे व्हाट हैपन्स द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग और जो उनकी इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस और अट्रैक्शन है ओके दे बिकम वीकेंड कि वो वीक होती हैं और उससे क्या होगा पार्टिकल स्टार्ट मूविंग एंड दे चेंज इनटू लिक्विड स्टेट तो वो टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड दैट इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट अब मेल्टिंग पॉइंट देखो जैसे फॉर एग्जांपल देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस is 0 degree Celsius. A freezing point of water is also 0 degree Celsius. Means कि water freezes at 0 degree Celsius and ice melts at 0 degree Celsius. लेकिन what we notice कि suppose we take जैसे हम suppose देखो we take 50 gram of ice in it. Okay, any quantity you can take 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, any. Okay, let it be 50 gram of ice. Okay, we take in it. Okay. Now we put a thermometer to note down the temperature. Okay, this is a thermometer. Let it be a stand. Okay, this is a stand. So this is thermometer. So this is a thermometer and which has been put into the bulb of the thermometer has been dipped into ice. क्या बल्ब का मतलब होता है जो नीचे का पार्ट है where mercury is fed जिसको बल्ब कहते हैं तो this bulb जो है that has been dipped inside the ice. Okay. Now what we notice that if we record the temperature तो temperature जो है that will be 0 degree Celsius. Okay. अब ice will start melting. Why? Because ice will absorb the heat from the surroundings. Okay? तो जो हमारे आसपास की गर्मी है उसको ice absorb करेगी heat को तो ice will start melting. Okay? अब what we notice that whole of the ice will melt but the temperature will never change. Okay? Temperature will remain constant at 0 degree Celsius. It means throughout the melting process the melting point is always constant. Okay? The question arises कि where has the heat gone? जो हीट आइस ने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की है टू चेंज इट स्टेट ओके वो हीट कहाँ गई तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जिसको मैं विच इज नोन एज द लेटेंट हीट ओके तो ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड मैक्सिमम फ्रॉम दिस टॉपिक ओके सो दिस इज तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट लेटेंट हीट कि व्हाट इज लेटेंट हीट तो व्हेन अ प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग टेक्स प्लेस सिमिलरली अगर हम यहाँ पे पानी लें क्या और पानी को हीट करें तो वाटर विल स्टार्ट इनटू वेपोराइजिंग और वो जो वेपोराइजेशन है दैट इज ऑलवेज एट 100 डिग्री सेल्सियस तो दैट वी नोटिस देखो दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं सपोज वी टेक वाटर है ओके यहाँ पे पानी ले लें एनी क्वांटिटी यू कैन टेक 100 ml ऑफ वाटर ओके 500 ml ऑफ वाटर 50 ml ऑफ वाटर एनी क्वांटिटी यू कैन टेक देन अगेन put a thermometer. In this case we can put the thermometer a little higher because okay, this is a stand. Now when we heat it, so after some time what we notice the water start boiling okay and the temperature of the boiling water because it will change into vapors okay तो vapors में change होगा तो ये temperature जो है that will be recorded by thermometer तो we will notice that it is 100 degree Celsius okay 100 degree Celsius
अब इस केस में भी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पूरा का पूरा लिक्विड बॉयल हो गया, लेकिन टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन एंड व्हाई इट हैपेंस दैट्स नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्यों ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो दिस इज द फर्स्ट क्या हो गया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पहले हम मेल्टिंग का करते हैं। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस changes in its liquid state, at its melting point, at atmospheric pressure, throughout the change the melting point always remains constant. The melting point always remains constant. Now where has the heat gone which has been absorbed by the solid substance to change its state into liquid? So this is now why it remains constant. Why this is constant? Now the temperature remains constant because the heat absorbed, कहां से हीट एब्जॉर्ब की सॉलिड ने? सराउंडिंग से, या हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं, दोनों केसेस में, बिकॉज द हीट एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड सब्सटेंस is used in breaking the interparticle forces of attraction. क्योंकि सॉलिड जो है उनमें पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वी हैव टू ब्रेक देम। तो वो ब्रेक करने के लिए जो हीट यूज हुई है, जो हीट एब्जॉर्ब की है सॉलिड ने, वो सारी की सारी हीट कहाँ पे हो गई? वो एब्जॉर्ब हो गई इन ब्रेकिंग दोज फोर्सेस। सो दैट्स व्हाई द टेम्परेचर डज नॉट राइज, टेम्परेचर वहीं का वहीं रहता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट क्योंकि हीट जो है दैट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड इन ब्रेकिंग द इंटरपार्टिकुलर फोर्स और अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स, इसलिए यूज हो रही है। तो दिस हीट इज नोन एज द हिडन फॉर्म, और इट इज द हिडन फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी and is called latent heat. This is this hidden form of energy heat energy absorbed by the solid in changing its state is the latent heat. अभी हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन भी लिखेंगे। अब लेटेंट हीट देखो, अभी तक क्योंकि दो स्टेट्स हमने चेंज किए हैं, एक सॉलिड टू लिक्विड और दूसरी लिक्विड टू वेपर्स, लिक्विड टू गैस, तो इसलिए दोनों के नाम भी अलग अलग होंगे। पहले सॉलिड टू लिक्विड, लेटेंट हीट इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट।
when solid converts to liquid, तो इस latent heat को we call it latent heat of fusion. Fusion means melting. Okay, fusion, melting एक ही बात है. Okay, latent heat of fusion. Okay, और when liquid converts into vapors, वेपर्स का मतलब गैसियस फॉर्म. ओके, तो व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस फॉर्म, तो इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब नाउ वी स्टडी इन डिटेल्स कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मैं बताती हूँ. ओके, एंड विद एग्जांपल. So first we start now latent heat of fusion. Latent heat simply is the hidden form of heat energy which is absorbed by a substance to change its state at the constant temperature. Okay? तो temperature throughout the change कभी क्या नाम है मतलब change नहीं होगा. Temperature always remains constant. चाहे वो melting point है चाहे boiling point है, दोनों. Okay? तो जब तक पूरा liquid gas में change नहीं होता, boiling point हमेशा constant रहता है. इसी तरह जब तक पूरा solid liquid में change नहीं होता, तब तक मेल्टिंग पॉइंट भी कांस्टेंट रहता है. और बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट. तो फर्स्ट वी स्टार्ट नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है. फ्यूजन का मतलब कि मेल्टिंग. तो मेल्टिंग का क्या मतलब है कि ये कौन सी हीट है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड. तो दिस इज दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इट इज द इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड by a unit mass of substance यूनिट मास का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर हम ग्राम में लेते हैं तो 1 ग्राम, केजी में लेंगे तो 1 केजी. okay? तो यूनिट मास का यूनिट मतलब 1. okay? तो 1 इट कैन बी 1 केजी, इट कैन बी 1 ग्राम. okay? यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इट्स physical state from solid to liquid at its constant melting point. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि जो भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो. नॉर्मली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर. ये मैं प्रेशर जब करेंगे तो फिर मैं आपको प्रेशर के बारे में भी सब कुछ बताऊंगी. तो अभी इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब एक यूनिट. इट मे बी 1 ग्राम, इट मे बी 1 केजी. टू चेंज इट्स फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट. तो ये जो अमाउंट है दैट इज नोन एज अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल जैसे तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू 335 किलो जूल पर केजी. देखो इसका क्या मीनिंग है कि अगर 1 केजी आइस है तो वो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आइस कोल्ड वाटर में कन्वर्ट होगा, तो 1 kg of ice in converting into ice cold water will absorb 335 kilojoule of heat energy. This is kJ का मतलब है kilojoule. It is a unit for the heat energy. Okay? तो when 1 kg of per kg मतलब 1 kg. Okay? Unit mass अब यहाँ पे 1 kg है. तो when 1 kg of ice converts into ice cold water at 0 degree Celsius, क्योंकि melting point is 0 degree Celsius. तो at 0 degree Celsius then it absorbs 335 kilojoules of heat energy. okay? तो ये मीनिंग है इसका. तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 किलो आइस है अगर और 1 किलो आइस वाटर है. okay? सपोज हमारे पास, देखो मैं इसका मीनिंग लिख रही हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. इसका मीनिंग क्या है कि इट मीन्स
1 kg of ice absorbs, okay, 1 kg of ice absorbs 335 kilojoule of heat energy when it converts to ice cold water at its melting point, that is 0 डिग्री सेल्सियस। कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस कोल्ड वाटर के पास 335 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर केजी ऑफ मास विल बी मोर। ओके, तो इसका मतलब जब एक केजी आइस इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगी और तब वो आइस कोल्ड वाटर में कन्वर्ट होगी, तो इसका मतलब क्लियर है कि आइस कोल्ड वाटर के पास इतनी एनर्जी ज्यादा है। ओके, और इसीलिए देखो हम किसी भी चीज को हमने ठंडा करना होता है, जैसे आप स्क्वैश बनाते हो घर में, शिकंजी बनाते हो, या कोई एनी अदर कैन में दिस ड्रिंक, ओके, कोल्ड ड्रिंक है, तो उसको ठंडा करने के लिए वी ऑलवेज यूज द आइस क्यूब्स। हम कभी भी उसमें आइस कोल्ड वाटर नहीं मिक्स करते। ओके, व्हाई डू वी मिक्स आइस? ओके, या हम मतलब कि आइस क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि आइस जब आइस कोल्ड वाटर में कन्वर्ट होगी व्हेन वी मिक्स इट इनटू एनी सब्सटेंस, तो वो क्या नाम है, जो हमारा लिक्विड है, okay, जैसे आपने स्क्वैश बनाई, अब स्क्वैश में आपने उसमें आइस क्यूब्स डाल दिए, तो आइस क्यूब्स क्या करेंगे, जब आइस क्यूब्स वाटर में कन्वर्ट होंगे तो वो स्क्वैश से पर केजी ऑफ द स्क्वैश से 335 किलो जूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर जाएंगे और स्क्वैश जो है ठंडी हो जाएगी। ठीक, क्योंकि हीट कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द स्क्वैश इटसेल्फ। आपने कोई भी लिक्विड ड्रिंक बनाया और उसमें आइस डाली है, तो इसीलिए चीजें ठंडी होती हैं। वी ऑलवेज यूज आइस एज कंपेयर टू आइस कोल्ड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो देखो, दिस विल बी द क्वेश्चन नाउ। Why do we prefer ice in making the things cool? Okay, or why ice is preferred over ice cold water? Okay, यहाँ हम इसमें ये कह सकते हैं why ice gives more cooling effect than ice cold water. तो रीजन आप क्या लिखोगे? बिकॉज व्हेन आइस कन्वर्ट्स इनटू आइस कोल्ड वाटर, तो इट एब्जॉर्ब। देखो, आई हैव गिवन यू द वैल्यूज। अगर कुछ बच्चों को वैल्यूज नहीं लर्न होती तो आप सीधा भी लिख सकते हो। इट्स बेटर अगर आप लर्न करो तो बहुत अच्छा है, नहीं लर्न होती तो आप सीधा लिख सकते हो कि व्हेन आइस दिस कन्वर्ट्स टू आइस कोल्ड वाटर, तो इट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी। एंड दैट्स व्हाई आइस कोल्ड वाटर विल हैव मोर हीट एनर्जी एज कंपेयर टू आइस। तो इसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है और इसके पास कम है। तो इसलिए आइस कोल्ड वाटर तो पहले ही ज्यादा हीट है उसके पास, तो इसलिए आइस कोल्ड वाटर विल गिव लेस कूलिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू आइस। आइस विल गिव मोर कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि आइस कन्वर्ट होने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करेगी और आइस कोल्ड वाटर के पास हीट ज्यादा होगी। सो दिस इज दैट व्हेन इट कन्वर्ट्स टू व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह से अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पे आते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है। Latent heat of vaporization. So latent heat of vaporization, it is the amount of heat absorbed by unit mass of substance. कौन सा substance? Of liquid substance. In changing its physical state
to gas, liquid to gas, okay, at its constant boiling point. At atmospheric pressure. तो मतलब जितनी हीट कोई लिक्विड, कितना लिक्विड, यूनिट मास, फिर यूनिट मास मींस 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 केजी भी हो सकता है, कि यूनिट मास लिक्विड गैस में चेंज होने के लिए अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। देखो फॉर एग्जांपल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन of water is 2260 किलोजूल पर kg। सेम वे, इसका क्या मतलब है कि when 1 kg of water converts into steam at 100 degree Celsius, then it will absorb 2260 kilojoule of heat energy। okay? तो ये मीनिंग है इस लाइन का। तो इट मीन्स when 1 kg of water changes to steam at 100 degree Celsius, then Celsius, then it absorbs 2260 kilojoule of heat energy in the form of latent heat of vaporization। अब यहाँ पर क्या मतलब है कि इसका मतलब कि जब वाटर स्टीम में चेंज होता है तो वाटर 1 kg वाटर इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है किस फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर्म में। तो इसका मतलब कि स्टीम के पास ज्यादा हीट है। ठीक है, तो स्टीम ऑलवेज हैज मोर हीट। जैसे आइस कोल्ड वाटर के पास ज्यादा हीट है, ऐसे स्टीम के पास भी ज्यादा हीट है। और स्टीम के पास वो हीट किस फॉर्म में ज्यादा है, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसीलिए आप अगर कभी चपाती बनाते टाइम चपाती फूली हुई है, ठीक है, और वो फट जाए तो कहना स्टीम इज वेरी इंजूरियस। ओके, हम बॉइलिंग वाटर में तो फिर भी हम अपनी कहना फिंगर को डाल सकते हैं, ओके, दो इट इज ऑल्सो वेरी हॉट, ट्राई मत करना, ओके, लेकिन फिर भी हम डाल सकते हैं। लेकिन स्टीम जो है वो दैट गिव्स द स्वीयर बर्न इंजरीज, बहुत ज़्यादा बर्निंग रहती है। तो वाई स्टीम गिव्स मोर बर्निंग इंजरीज, ओके, रीजन यही है बिकॉज स्टीम हैज मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ओके, इस फॉर्म में। तो व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू, so steam always gives more sphere burns as compared to boiling water. Okay? So this is the reason for this. Okay? So that's why steam is more injurious. Or it gives sphere burns as compared to boiling water। जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम है, स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बॉइलिंग वाटर का भी 100 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन इवन देन स्टीम इज ऑलवेज मोर इंजूरियस एंड इट गिव्स मोर स्फीयर बर्न्स। के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई आइस गिव्स मोर कूलिंग इफेक्ट देन आइस कोल्ड वाटर एंड व्हाई स्टीम इज मोर इंजूरियस देन द बॉइलिंग वाटर। ओके, बोथ ऑफ द क्वेश्चन रीजंस में। और दिस वाज द कांसेप्ट अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब सपोज
हमारे पास हमें ये छोटे छोटे मैं एक दो न्यूमेरिकल्स आपको बताती हूँ फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो अमाउंट ऑफ हीट के लिए जैसे सपोज हमें आता है कि कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब्ड by 525 kg of boiling water in converting to steam at 100 degrees Celsius, and latent heat of vaporization is equal to 2260 kilojoule per kg. Okay, this is given. Okay, this is only for competition. स्कूल में आपके इस तरह के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे. Okay, तो this is तो अब heat absorbed by 525 kg of boiling water. Okay, तो इसके लिए हम heat का फॉर्मूला होता है Q. Okay, Q means कि amount of heat absorbed. That is always equal to m into L. L यहाँ पर latent heat of vaporization, m mass. Okay, और ये क्यों हमने ml का फॉर्मूला लगाया है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है. चेंज ऑफ स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो जब चेंज ऑफ स्टेट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है तो वी यूज द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू ml. तो बहुत सिंपल है. मास इज इन kg 525. और लेटेंट हीट वी हैव बीन गिवन 2260. तो इनको मल्टीप्लाई करो तो दैट विल बी इन किलो जूल. तो ये आंसर आ जाएगा कि 525 into 2260 किलो जूल. सो दिस इज हाउ विल कन्वर्ट इट. अब एक और थोड़ा सा NTSC का क्वेश्चन है. आई टेल यू कि हाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस. सपोज अगर हमें ये दिया हुआ है calculate the amount of heat absorbed in converting 1 kg of ice from -5 degree Celsius to 5 degree Celsius. Okay? अब -5 से 5 गया है. Okay? अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझ, दिस इज कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है. ये आपके स्कूल में इस टाइप के नहीं आएंगे. जो बच्चे सिर्फ स्कूल का पढ़ना चाहते हैं दे कैन ओमिट दीस न्यूमेरिकल्स. लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप यू कैन गिव द NTSC एग्जाम ऑल्सो. तो -5 से 5 में चेंज है. यहाँ हम देखेंगे. अब थोड़ा सा सोचो. -5 डिग्री से आइस जो है पहले कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस तक. -5 से पहले वो 0 पे आएगी. फिर 0 डिग्री से 0 डिग्री. अब यहाँ पे 0 डिग्री पे आइस है और यहाँ 0 डिग्री पे क्या बन गया? आइस कोल्ड वाटर. ये सेकेंड चेंज होगी. और थर्ड चेंज क्या होगी? फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्वेश्चन में हीट 3 वेज से एब्जॉर्ब होगी. देयर आर 3 वेज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. फ्रॉम -5 टू 0 3 स्टेप्स हैं ये. देन 0 to 0 एंड देन 0 to 5. अब जब टेम्परेचर चेंज है, जैसे ये -5 से 0 है, टेम्परेचर चेंज है. यहाँ पर भी 0 से 5 टेम्परेचर चेंज है. और लेकिन सेकेंड केस में टेम्परेचर चेंज नहीं है. तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं है तब तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इस केस में, सेकेंड केस में Q इज इक्वल टू ml. ये फॉर्मूला लगाएंगे. और व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, जैसे इस केस में भी है और इस केस में भी है, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं Q इज इक्वल टू m इंटू S इंटू डेल्टा T. फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे. और इस केस में भी Q इज इक्वल टू m इंटू S इंटू डेल्टा T. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा. S for water
is amount of heat, उसमें kg में है, so this is water for S is here specific heat. Okay, so specific heat of water is 4200 kilojoule per kg. Okay, this is also given in the question. तो अब ये तो वाटर की दी हुई है और S ऑफ यहाँ पर आपको एक और दिया होगा, दैट विल बी क्वेश्चन में गिवन होगा ये सब कि S फॉर आइस इज, लेट इट बी, तो दिस इज सपोज ये गिवन है। अब यहाँ पर आइस में कन्वर्जन है, -5 to 0 पे आइस है। तो पहले पार्ट में क्या होगा, मास की जगह 1, ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 520 और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज कितना हुआ है -5 से 0। ओके, अब इसमें दोनों में बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, 0। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर हम बड़े टेम्परेचर से माइनस छोटा टेम्परेचर इस तरह से करेंगे कि 0 माइनस -5, ओके, क्योंकि 0 इज अ बिगर टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर से लो में, हाई 0 तो 0 माइनस और -5 ये टेम्परेचर है। okay? तो यहां से आपका Q की पहली वैल्यू आएगी। okay? सेकेंड में अब ml करना है, ml के लिए हमें मास फिर 1 kg और L कितना है, अच्छा L आई नॉट गिवन, तो L जो है वो कितना है 335 किलो जूल पर kg, दिस इज द वैल्यू ऑफ L। तो दिस इज आइस कोल्ड वाटर 1 into 335, ये सेकंड केस आ गया। और थर्ड केस में फिर मास 1, अब हम S किसकी लेंगे, वाटर की, okay, 4200 और चेंज इन टेम्परेचर, अब बड़ा टेम्परेचर 5, छोटा टेम्परेचर 0, okay, तो 5 माइनस 0, तो तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करो और फिर ऐड कर दो, तो this will be the total amount of heat energy absorbed purely for competitive exams, okay, not for the school. I am again repeating you, okay, it will be not for the school, so you don't have to do for the school, only you have to do for the competitive exams, okay, that this is, okay, and even then if you don't understand, so then I'll explain you again, okay, so this, तो 520 into 0 minus -5, तो यहाँ पे कितना आ गया 5, तो 520 into 5, तो ये कितने बनेगा, देखो 500 2600 किलो जूल, ये कितनी आ गई 335 किलो जूल, और यहाँ से कितना आ गया 4200 into 5, तो 500 21,000 किलो जूल। तो तीनों को जब आप ऐड करोगे तो इट विल कम टू बी, तो दैट विल बी आंसर आपका आएगा 53932, ये आ जाएगा, इतने किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी विल बी द आंसर। वी हैव एडेड द 3, तीनों को ऐड कर दिया, तो दिस इज हाउ। तो चेंज ऑफ स्टेट जब भी होगी, अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है तो देन ओनली इट इज अ लेटेंट हीट, और अगर चेंज ऑफ स्टेट जो है मतलब अगर टेम्परेचर चेंज है, अब स्टेट नहीं चेंज हो रही, यहाँ पे -5 पे भी आइस है, 0 पे भी आइस है, स्टेट इज नॉट बीइंग चेंज, स्टेट सिर्फ यहाँ चेंज हो रही है। तो जब स्टेट चेंज नहीं हो रही तो फिर MS3 का फॉर्मूला लगाते हैं, और जब स्टेट चेंज हो रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर हम Q = ml का फॉर्मूला लगाते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द चेंज। तो दिस वाज आस्क्ड इन NTSC, तो उसमें कि लेटेंट हीट के ऊपर की कैसे क्वेश्चंस करते हैं, बट जस्ट टू गिव यू द नॉलेज दैट व्हाट इज Q = ml और व्हाट इज Q = ms delta T। ओके, दिस इज नोन एज ms delta T। हियर m इज द मास, s स्पेसिफिक हीट, किसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सो दिस इज हाउ। So this was about the latent heat, important concept है, revise it thoroughly, okay, and do it, learn it properly, okay.